Hello everyone. Today we will read history. So open your book, Our Past, third part 1. In the previous two chapters we have read that East India Company's military victories in Carnatic, Plassey and Buxar and transformed it from a trading company to a political power, and the company's new administrative responsibilities after the end of dual government in 1772, and in 1765 East India Company became the Diwan of Bengal. The company, however, company involved enormous expenditure, so company had gone bankrupt and had to appeal to the Parliament, means Britain legislature, for a loan. The Parliament gave the loan and began to regulate the company administration in India, and it passed several acts such as Regulating Act of 1773, Pitt India Act of 1784, and British administration in India centralized. Beside it, the Charter Act passed every 20 years to renew the company right to eastern trade, gradually increase the Parliament's control over the company. And that's the result. In 1858, the East India Company's rule in India ended and the British Crown took over the administration of British territories in India. So today we will start our third chapter of history, and this is ruling the countryside. After became the Diwan of Bengal, how the company started their administration work and the revenue policies all over the India. So we will read about these policies, their civil administration system, और किस तरह की क्रॉप्स उन्होंने यहाँ पे फोर्सफुली यहाँ के ज़मींदारों से, यहाँ के पीसेंट से उगवाना स्टार्ट किया, और किस तरह फिर इंडिगो को जब फोर्सफुली उन्होंने उगवाना स्टार्ट किया, इसके अलावा और भी क्रॉप्स थे जिन्हें उन्होंने फोर्सफुली यहाँ पे पीसेंट से और यहाँ के फार्मर्स से ग्रो कराया। देन बहुत सारे रिवोल्ट भी हुए, और यही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में रीड करेंगे। फर्स्ट वी विल रीड अबाउट द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन system of British company. What is the structure of administration? How they work, how they administrate our country after became the Diwan of Bengal and the other part of India. A Governor General administered all the British territories in India with the help of the members of his council, and there were a large number of officials for carrying out day-to-day administrative tasks at various levels. They were called civil servants. These officials या these governor generals या जो people यहाँ पे work करते थे उन्हें civil servants बोला जाता था, and they belong to the Indian Civil Service ICS, and this is founded by Lord Cornwallis. He was the founder of ICS and introduced the permanent settlement in India. Lord Cornwallis was the Governor General in 1793. For the purpose of administration, British India was divided into provinces: Bengal, Madras and Bombay. These were called presidencies, and each presidency was under a governor and his council, and all appointed by a British monarch. Every other province was under a lieutenant governor or a chief commissioner appointed by the Governor General. And that time who was the Governor General? Lord Cornwallis. A province or a presidency was divided into district, and this is the chart which told us about the administrative system of British time. In this chart we have read that the Governor General was the head of presidency, and a province or a presidency was divided into district. The district was the most important administrative unit in India under the British. The collector was the most important civil servant in a district, and it
His office was called the collectorate, and the collector collected revenue and was also the district magistrate who administered justice and maintained law and order in the province, in the district. And this is the rule which we have following today. आज भी हम इसी रूल इसी रेगुलेशन को फॉलो करते आ रहे हैं। आज भी हमारे यहाँ जो हमारे डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है उसे कलेक्टर बोलते हैं और उसके ऑफिस को कलेक्ट्रेट बोलते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट के लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करते हैं उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलते हैं। इंडियंस आर रिक्वायर्ड टू एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट बट यूजुअली एट द लोअर लेवल्स। इंडियंस को भी इन पोस्ट पर रखा गया, ऑफिसर्स की पोस्ट पर, बट उनकी जो पोस्ट थी वो लोअर लेवल्स पर थी। उन्हें लो सैलरीज दी जाती थी और उनका प्रमोशन भी डिनाइड था। इट मीन्स उनके लेवल में कभी भी उन्हें डिक्रीज़ नहीं किया जाता था, इंक्रीज़ नहीं किया जाता था। उन्हें उनके पदों को नहीं बढ़ावा दिया जाता था, उनकी सैलरी इंक्रीज़ नहीं होती थी, उन्हें फिक्स पोजीशन पर रखा जाता था। बट इसके कंपैरिजन में जो यूरोपियंस थे उनकी जो पोस्ट थी वो सारी हाई पोस्ट पर उन यूरोपियंस को ही रखा जाता था। देन वी विल टॉक अबाउट पुलिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ऑर्गेनाइज द पुलिस सिस्टम। इट वॉज हेडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट and at the district level each district had a superintendent and a deputy superintendent of police, and the district was divided into thana under a daroga, and the villages and town had चौकीदार्स एंड कोतवाल रेस्पेक्टिवली। इट मीन्स पुलिस सिस्टम का जो हेड होता था उसे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बोलते थे। उसी की देखरेख में डिस्ट्रिक्ट की पुलिस चलती थी। बाद में डिस्ट्रिक्ट को थाना में डिवाइड किया जाता था और हर थाना का जो हेड होता था उसे दरोगा बोलते थे। इसके अलावा विलेज और टाउन में चौकीदार्स या फिर कोतवाल काम करते थे। जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन। There was no uniform court laws in India when the British arrived. Initially, the company continued with the Hindu law based on the ancient Dharmashastra and the Muslim law called the Sharia. Sharia means ये लॉ होते हैं इंटरप्ट बाय हिंदू पंडित एंड मुस्लिम मौलवीज। इट मीन्स दैट टाइम हिंदुओं में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती थी, कोई कन्फ्लिक्ट होते थे, किसी तरह के कोई मतभेद होते थे या मॉडर्न्स में इस तरह के कुछ मुस्लिम में कुछ होते थे, तो इन लोगों को पंडितों पर हिंदुओं में और मौलवीज़ पर मुस्लिम में इन कन्फ्लिक्ट्स को, इन झगड़ों को सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पंडित और मौलवी की होती थी। यूरोपियंस ने भी इन्हें जब जो सिविल कोर्ट का ऑर्गेनाइजेशन किया, सिविल कोर्ट की फाउंडेशन रखी, तो इन मुस्लिम मुफ्तीज़ और काजीज़ को भी उन कोर्ट में रखा। बट जो जज थे वहाँ पर वो यूरोपियन ही थे। इसके अलावा बाद में सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता के अंदर 1774 में सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया गया। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक और कोड इंट्रोड्यूस किया जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर अलग अलग एस्पेक्ट्स थी, और बाद में उन्होंने बोला कि कोई भी अब काम जो होगा वो ओरली नहीं होगा, पुराने कस्टम और ट्रेडिशन पर बेस्ड नहीं होगा, बल्कि जो भी लॉ बनेंगे, जो भी कानून बनेगा, कुछ भी अगर वर्क होगा वो अब रिटन बेस पर होगा। तो इसके अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की जो एस्टेब्लिश हुई सुप्रीम कोर्ट 1774 में, इसके बाद 1865 में हाई कोर्ट एस्टेब्लिश हुई कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे के अंदर, और जहां पर ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम में लीगल प्रोसीजर के तहत काम होता था, बट ये प्रोसीजर बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग था और एक्सपेंसिव भी था। देन वी विल टॉक अबाउट द रेवेन्यू पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स। रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स ने कई सारे रूल्स और रेगुलेशंस चलाए इंडिया के अंदर। उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले 1773 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही एक नया पॉलिसी इंट्रोड्यूस की, परमानेंट सेटलमेंट बंगाल के अंदर। इसमें क्या था, जो छोटे छोटे स्मॉल किंग्स या किंगडम्स थे उसमें उन लोगों से उन्हें जमींदार अपॉइंट किया जाता था और उनसे रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था।
ये रेवेन्यू कलेक्ट करने की परसेंटेज थी दैट टाइम 89%। इट मीन्स 89% वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देंगे और 11% जमींदार अपने पास रखेंगे। बट इस सिस्टम की वजह से जमींदारों की कंडीशन जो थी वो डे बाय डे बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी और इस परमानेंट सेटलमेंट के बहुत सारे इफेक्ट थे। नए लैंडलॉर्ड्स आ गए थे, जमींदारों के ऑकेशन के थ्रू उनसे उनकी ज़मीन हड़प ली जाती थी। जो ज़्यादा रेवेन्यू देने के लिए रेडी होते थे उन्हें वो ज़मीन दे दी जाती थी और बदले में ब्रिटिशर्स, ब्रिटिश ऑफिसर्स, ये गवर्नर जनरल्स अपनी मनचाही लोगों से रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जिसकी वजह से पीसेंट्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी, बहुत ज़्यादा मर्सीफुल हो गई थी दैट टाइम। और ये जमींदार्स अपने ड्यूज़ को गवर्नमेंट को पे करने में बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो गए थे, जिसकी वजह से इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन्स हो गया था, ये डेब्ट में डूबते चले गए थे और इसी वजह से ये लैंडलेस होते चले गए। एग्रीकल्चर पर भी इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा और जिसकी वजह से कल्टीवेशन का जो मेथड था वो इम्प्रूव होने की बजाय बहुत ज़्यादा ख़राब होता चला गया। नाउ वी विल रीड अबाउट रैयतवारी सिस्टम। ब्रिटिश ऑफिशियल अलेक्जेंडर रेड और थॉमस मुनरो ने एक नया सिस्टम निकाला दैट वाज कॉल्ड रैयतवारी सिस्टम। इन दिस सिस्टम जो कलेक्टिव रेवेन्यू था वो डायरेक्टली ही रेयत्स मीन्स कल्टीवेटर, फार्मर्स, वो डायरेक्टली ही ब्रिटिशर्स को वो रेवेन्यू कलेक्ट कर देंगे। इस ड्यूरिंग द एंग्लो मैसूर वॉर रीड एक्सपेरिमेंटेड विद ही सिस्टम इन सम एरियाज ऑफ साउथ इंडिया। इट मीन्स जो ये रेतवारी सिस्टम था ये साउथ इंडिया में फॉलो किया गया और थॉमस मुनरो ने इसके अलावा एक और सिस्टम को रेतवारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। थॉमस मुनरो ने मैसूर और कर्नाटक जगहों पर और बाद में इस बॉम्बे और मद्रास में भी एज वेल एज ये रेतवारी सिस्टम फॉलो किया जाने लगा। इट मीन्स इसमें कोई भी मिडलमैन नहीं होगा, सीधे कल्टीवेटर्स ही डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रेवेन्यू कलेक्ट करके देंगे। This revenue is called Rayatwari settlement. Then we will talk about Mahalwari settlement. In 1820s, British official named Holt Mackenzie conducted detailed land survey in a part of Bengal Presidency called the Northwestern Province, and the area included Western Uttar Pradesh and most of the part of Madhya Pradesh and Ganga Yamuna Doab. 1820 में ब्रिटिश ऑफिशियल थे जिनका नाम था होल्ट मैकेंजी। उन्होंने एक नया रूल निकाला, एक नया सिस्टम फॉलो किया, महलवारी सिस्टम, और इस सिस्टम के अंडर उन्होंने डिटेल में लैंड सर्वे कराया। मैकेंजी को समझ आ गया था कि जो इंडिया है, जो भारत है, वो यहाँ के विलेजेस में लीव करता है, यहाँ के विलेजेस में बसता है, इसलिए उसने विलेज टू विलेज सारी लैंड का सर्वे कराया कि कौन सी लैंड कितनी फर्टाइल लैंड है, किस जगह पर कितनी ज़्यादा अच्छे तरीके से क्रॉप ग्रो होती है, किस पेसेंट के पास कितनी लैंड है, कौन कितनी लैंड की ओनरशिप रखता है, और जो ट्रेडिशनल रेवेन्यू कलेक्टर्स हैं वो इसमें अपनी एग्रीकल्चर में कैसे इम्प्रूवमेंट करें, ताकि अगर वो अपनी एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट करेंगे, अपनी लैंड को और ज़्यादा फर्टाइल करेंगे, तो उनसे रेवेन्यू कलेक्ट करना उतना ही ज़्यादा स्टार्ट कर देंगे ब्रिटिशर्स। इसलिए इस सिस्टम के ड्यूरिंग जो होल्ट मैकेंजी थे उन्होंने लैंड का सर्वे कराया और पीसेंट्स को ये राइट दिया कि वो अपनी जो लैंड है उसके ऊपर हर एक विलेज का जो हेडमैन होगा, विलेज को नाम दिया गया महल। महल मीन्स अ विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेजेस दैट पेड लैंड रेवेन्यू एज अ सिंगल यूनिट। इट मीन्स जो महल का जो हेड होगा, जो विलेज मैन होगा, विलेज हेडमैन होगा, वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये रेवेन्यू पे करेगा एज ए सिंगल यूनिट। बट ये भी एक इफ़ेक्टिव वे नहीं था। इसके बाद भी बहुत सारे इफ़ेक्ट आए रेतवारी और महलवारी सेटलमेंट्स के भी। इसमें भी लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, बहुत सारे लोग इनडेब्टेडनेस हो गए, कर्ज में डूब गए और पीसेंट्स की जो कंडीशन थी वो ख़राब होती चली गई इसकी वजह से। सो ये दोनों सिस्टम भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। Our next point is cultivation of commercial crop, and we will continue this point in our next video. Thank you.